Students, welcome in chemistry session. Here we are discussing the part of halogen derivatives of alkanes. Herein we are discussing the part of the reactions of alkyl halide. In continuation of the parts, here the reactions with what? Potassium hydroxide. रिएक्शन विथ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसमें दो टाइप्स के पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हमको यूज़ करना है. पहला लेना है अल्कोहलिक KOH एंड दूसरा लेना है एक्वस KOH. Condition different, that is a reaction condition. Whenever we use this alcoholic KOH, then what happens? Then aqueous KOH, then what happens? This is what a starting reactant molecule is what? Alkyl halide. It is treated with what? Alkyl halide is treated with alcoholic KOH and alkyl halide is treated with what? Aqueous KOH. Suppose if we are having the starting reactant molecules, यहाँ पे हमारा starting reactant molecule है that is isopropyl bromide. So this is isopropyl bromide is there. Isopropyl bromide. आता या ठिकाणी आपण दोन रिॲक्शन कंडिशन अशा घेऊयात. एक आपल्याला घ्यायचे अल्कोहोलिक KOH आणि दुसरी घ्यायची आहेत ॲक्वस KOH. जर अल्कोहोलिक KOH घेत असेल तर काय होणार आणि अल्कोहोलिक KOH जर घेत असेल तर काय होणार? व्हेरी सिंपल. Whenever we use this is the alcoholic KOH, their formation of the elimination types of the reaction here plus HBr hydrogen bromide, and here what we use this is what K again here KBr potassium bromide. Alcoholic KOH, it is used for the elimination types elimination, it carried the elimination, and whenever we use the aqueous KOH, it is what a substitution reaction. तो यहाँ पे जैसे कि हमारे पास सेकेंडरी अल्किल ब्रोमाइड है, सो दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? सेकेंडरी ब्यूटिल ब्रोमाइड. स्टार्टिंग रिएक्टंट मॉलिक्यूल सेकंडरी ब्यूटिल ब्रोमाइड. जर आपण इथं सेकंडरी ब्यूटिल ब्रोमाइड घेत असू आणि रिॲक्शन कंडिशन आपल्याला अल्कोहोलिक KOH घ्यायची, कुठले? ALC KOH, alcoholic KOH. Whenever the alcoholic KOH, then what happen? This starting reactant, this alpha, this one is beta and this one is a beta. Starting reactant molecule having two types of the beta carbon, primary beta and secondary beta. So the base having tendency to abstract the proton from the beta carbon atom, this is the carbon ion, and again this take the proton from such types of the beta carbon atom, so this is called as secondary carbon ion, and this is the primary carbon ion. And when we have to use here the types of the reaction here, formation of primary carbon ion and secondary carbon ion. अब यहाँ पे primary carbon ion से ये न्यूक्लियोफाइल ऐसा लॉस हो जाएगा, ब्रोमीन लॉस होगा with what? Potassium, then minus KBr is here potassium bromide. Then what happen? There is formation of one butene here, formation of but one in. There is formation of the but one in. यहाँ पे but one in formation होता है. So here minus Br is here, minus again KBr potassium bromide. Then formation of what? 2 butene. Here formation of 2 butene or but 2 in. There is what two types of the product here. This type is the 80% product is obtained, and this one is what 20% product is obtained. There is what a regioselective. What I can say? The regioselective product is formed regioselectivity. regioselectivity यहाँ पे फॉर्मेशन होते हैं, एक मेजर मिलता है और दूसरा माइनर फॉर्म होता है by using what? Starting reactant molecule. Secondary butyl bromide. The secondary butyl bromide is treated with what? Alcoholic potassium hydroxide. Then what happen? There is a formation of two types of the product. So that is what? Primary carbons and the secondary types of the carbon. तो यहाँ पे reactivity की हम बात करेंगे. Suppose the primary carbon atoms gives the minor product and the secondary types of the carbon atom gives what? A major product. तो यहाँ पे बीटा कार्बन दो टाइप्स के होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी, और टर्शियरी भी हो, मतलब दो कार्बन में यहाँ पे कंपटीशन होगा, प्राइमरी सेकेंडरी. यहाँ पे याद रखना है tertiary carbon, secondary and what are primary. So that is the stability for such types of the reaction. It is elimination reaction. 1 butene and 2 butene here. 2 butene is major, 1 butene is minor. So this types of the reaction is called as regioselective reaction, and this is known as what? One of the name secondary is major. What I can say? The secondary types of the product is major. So that is called as Said-Chef elimination. SAY, Said-Chef.
Z-safe elimination, or we can say the Z-safe elimination reaction. This is called as Z-safe elimination, SER, or as you can say ZER. So one of the question is asked in NEET exam 2020 नीट एग्ज़ाम में इसके ऊपर एक क्वेश्चन आया था। मतलब हर साल यहाँ पे Z-safe और Z-safe के ऊपर नीट JEE में क्वेश्चन पूछा जाता है। यू हैव टू गिवन सच टाइप्स ऑफ द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल एंड फाइंड आउट द प्रोडक्ट। तो यहाँ पे सपोज जैसे कि हमारे पास साइक्लिक कंपाउंड है ये वाला, so this is called as 1-bromo-2-methyl cyclohexane. 1-bromo-2-methyl cyclohexane, it is treated with what? Alcoholic KOH. Then what happen? So there is what? Again ratio selectivity. If you have to, the bicyclic compound is here like this. यहाँ पे बाइसाइक्लिक कंपाउंड है, सपोज ये क्लोरीन एटम्स है, एंड देन व्हाट? ALC, अल्कोहलिक KOH. देन व्हाट हैपन? देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट, रेजियो सेलेक्टिव प्रोडक्ट इज ऑब्टेन्ड. How the ratio selectivity takes place here? There is a formation of the two types of the carbon ion, primary carbon ion and secondary carbon ion. तो याद रखना है यहाँ पे जो कार्बन आयन फॉर्मेशन होते हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी. सो देयर इज व्हाट? दिस अल्फा कार्बन, दिस इज द बीटा कार्बन एंड दिस इज द बीटा कार्बन. तो यहाँ पे देखो ये जो बीटा कार्बन है ये टर्शियरी कार्बन है और ये जो बीटा है ये सेकेंडरी है. तो यहाँ पे जब हम कार्बन आयन फॉर्मेशन करने की पॉसिबिलिटी करेंगे तो ये मेजर फॉर्मेशन होता है और यहाँ पे ब्रोमीन लॉस हो जाएगा. देन प्रोडक्ट पॉसिबिलिटी, देयर इज व्हाट? सच टाइप्स ऑफ द प्रोडक्ट. अगेन अनदर प्रोडक्ट पॉसिबिलिटी, देयर इज व्हाट? माइनर प्रोडक्ट इज ऑब्टेन हियर, सच टाइप्स ऑफ द प्रोडक्ट. सो दिस इज व्हाट? 80% प्रोडक्ट इज फॉर्म, दिस इज वन इज अ 20% प्रोडक्ट इज फॉर्म. दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? रेजियो सेलेक्टिव फॉर्मेशन. यहाँ पे हमको रेजियो सेलेक्टिव प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा. सो देयर इज फॉर्मेशन ऑफ द रेजियो सेलेक्टिविटी, मेजर वन एंड माइनर वन, स्टार्टिंग फ्रॉम सच टाइप्स ऑफ द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल. यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट हम लिखने की कोशिश करेंगे. सो देयर इज फॉर्मेशन ऑफ द मेजर प्रोडक्ट इज लाइक दिस. सो हियर secondary is major, as you can say secondary is major than primary and tertiary is major than secondary, as well as tertiary is major than primary. तो यहाँ पे ये स्टेबिलिटी याद रखना है. Z-safe एलिमिनेशन को बीटा एलिमिनेशन भी कहा जाता है. कौन सा एलिमिनेशन? दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन. Z-safe एलिमिनेशन और Z-safe एलिमिनेशन इट इज कॉल्ड एज बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन. तो यहाँ पे हमने सोडियम मतलब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लिया. इंस्टेड ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हम सोडियम इथॉक्साइड भी ले सकते. KOH है, अल्कोहलिक KOH. जैसे कि हम सोडियम इथॉक्साइड ये बेस भी यूज़ कर सकते हैं स्टार्टिंग रिएक्टेंट अल्किल हैलाइड के साथ. जैसे कि हमारे पास सेकेंडरी है या न्यूओ है. सपोज इफ वी आर हैविंग सच टाइप्स ऑफ द कंपाउंड आल्सो. सो दिस वन इज अ ब्रोमीन atom and this is like this, having the tendency this alpha carbon and this one is beta carbon, this one is beta. So these types of the beta it is called as tertiary and these types of the beta it is called as primary. So what happened here? We are using the sodium ethoxide ETONA as well as ALC potassium hydroxide. So what is the major product here? हम major product लिखने की कोशिश करेंगे दोनों तरफ. So this one is major and this one is also major. सपोज LDA लेते हैं हम यहाँ पे, LDA लिथियम डाइसोप्रोपिलामाइड. सो दिस इज व्हाट अ स्टेरिकली क्राउडेड प्रोडक्ट. स्टेरिकली, सो दिस इज कॉल्ड एज स्टेरिकली क्राउडेड बेस. जब हम स्टेरिकली क्राउडेड बेस लेते हैं यहाँ पे सेलेक्टिविटी की बात आती है तो याद रखना है स्टेरिकली क्राउडेड LDA लिथियम डाइसोप्रोपिलामाइड इस टाइप्स का हम बेस कभी लेते हैं तो हमारे पास इसका प्रोडक्ट मिलता है ये वाला. तो ये मेजर प्रोडक्ट रहता है whenever we use this LDA. such types of the question is compulsory asked in your JEE exam, G exam, so IIT exam. So this is what whenever this here this selectivity is most important. So no doubt this types of the question is asked in your NEET exam as well as CET exam. यहाँ पे लेवल के तरीके से आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं NEET CET में as well as what JEE एग्जाम में. स्टेरिकली क्राउडेड कौन से बेस है? जब स्टेरिकली क्राउडेड बेस ले आ जाएगा
तो लेस स्टेरिकली क्राउडेड से प्रोटॉन अब्स्ट्रैक्ट किया जाएगा। फिर यहाँ पे ये प्रोडक्ट हमको मतलब इंटरमीडिएट जो है इसका इंटरमीडिएट ऐसा मिलेगा, सो दैट इज प्राइमरी कार्बन आयन एंड देन व्हाट अबाउट दिस इज द लास्ट एंड देन फॉर्मेशन ऑफ सच टाइप्स ऑफ द प्रोडक्ट। सो हियर वी हैव बीन डिस्कस द पार्ट ऑफ रिएक्शन ऑफ अल्किल हैलाइड विद बेस, that base using what sodium methoxide and potassium hydroxide। अब यहाँ पे हमने इसका बेस बोल के यूज़ किया जो कि अल्कोहलिक KOH हमने यूज़ किया, उसके बाद सोडियम इथॉक्साइड यूज़ किया, ELDA यूज़ किया, लिथियम डाइसोप्रोपिलामाइड, और यहाँ पे हमने एलिमिनेशन रिएक्शन किया। सो हियर एलिमिनेशन प्रोडक्ट इज ऑब्टेन दैट इज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, बट यहाँ पे हमको रिएक्शन करना है। सपोज if we are having the such types of the compound is here and this is reacted with what aqueous potassium hydroxide। अब यहाँ पे बेस के साथ हमको रिएक्शन करना है, अल्कोहलिक नहीं, अब यहाँ पे एक्वस कंडीशन लेना है, एक्वस KOH। whenever we use the aqueous KOH, starting reactant molecule must be different, so that is the bromine, here a hydrogen atom and here what a CH3 group, methyl group and methyl group। अब यहाँ पे हमको टारगेट रखना है कि कौन सा टाइप्स का ये कार्बन है। हम यहाँ पे हम देखेंगे कि ये जो कार्बन है ये प्राइमरी कार्बन है जो कि ब्रोमीन एटम उसको अटैच है, और यहाँ पे टर्शियरी कार्बन एटम है। ये कौन सा कार्बन है? प्राइमरी। सो दिस इज कॉल्ड एज प्राइमरी अल्किल ब्रोमाइड, इट इज कॉल्ड एज प्राइमरी अल्किल ब्रोमाइड एंड दिस इज कॉल्ड एज टर्शियरी अल्किल ब्रोमाइड। तो यहाँ पे प्राइमरी अल्किल ब्रोमाइड है, यहाँ पे टर्शियरी अल्किल ब्रोमाइड है। सो व्हाट हैपन हियर, दिस इज कॉल्ड एज मेथिल ब्रोमाइड, इसका नाम है मेथिल ब्रोमाइड, और इसका नाम है टर्शियरी ब्यूटिल ब्रोमाइड। सो हियर मेथिल ब्रोमाइड एंड टर्शियरी ब्यूटिल ब्रोमाइड एज अ स्टार्टिंग रिएक्टर which is reacted with what aqueous potassium hydroxide। यहाँ पे aqueous potassium hydroxide लिया जाएगा। सो व्हाट इज द प्रोडक्ट, क्या होगा? एक्वस कंडीशन लेने के बाद अल्कोहलिक कंडीशन हम जब लेते हैं तो एलिमिनेशन होता है। एक्वस कंडीशन लेना है तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन होता है, याद रखना है। OH, it is Br is replaced by OH, OH is a nucleophile, K is a positive, K positive, OH is a nucleophile। तो यहाँ पे ये न्यूक्लियोफाइल बोल के अटैक करेगा और Br निकल जाएगा। सो देर इज फॉर्मेशन ऑफ OH एटम इज हियर, H हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और यहाँ पे आएगा हमारा सो these types of the OH। So this is OH is formed, that is formation of this tertiary butyl alcohol, but this is going to the formation of like this, there is formation of two types of here OH, as you can say non-superimposable mirror images, this one is a dextro, this one is a Leo, this one is a 50%, this one is a 50%, there is formation of one of the mixture, this is called as a racemic mixture, this is formation of what a racemic mixture। racemization यहाँ पे formation होगा, enantiomer formation होता है, this both react, this first one and the second one it is called as what a non-superimposable mirror images, as you can say this is called as enantiomer, it is called as enantiomer यहाँ पे formation होता है starting reactor tertiary butyl bromide। So this tertiary butyl bromide is reacted with aqueous potassium hydroxide in the presence of polar protic solvent। यहाँ पे polar protic solvent यूज करना है, CH3OH, मिथेनॉल, C2H5OH, इथेनॉल, अगेन व्हाट वाटर मॉलिक्यूल। मतलब इसमें से कौन सा भी एक सॉल्वेंट हमको यूज करना है, मिथेनॉल, इथेनॉल और वाटर मॉलिक्यूल, देन फॉर्मेशन ऑफ वाटर 50% डेक्स्ट्रो एंड द 50% लियो, इट इज कॉल्ड एनांशियोमर हैविंग द नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेजेस। तो यहाँ पे हमको देखना है कि कौन से टाइप्स का न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, जहाँ की यहाँ पे नॉन पोलर सॉल्वेंट हमको यूज करना है, नॉन पोलर सॉल्वेंट, जैसे कि बेंजीन मॉलिक्यूल है, झाइलिन मॉलिक्यूल है, टूलिन मॉलिक्यूल है, ये सॉल्वेंट यहाँ पे हमको यूज करना है। ये 100% प्रोडक्ट यहाँ पे मिलता है, यहाँ पे 50% मिलता है। सो हियर फॉर्मेशन ऑफ इन्वर्जन कॉन्फ़िगरेशन से, ये टर्म क्या है इसको हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, इन्वर्जन कॉन्फ़िगरेशन। और यहाँ पे होता है हमारा सो रिटेंशन, सो दिस इज व्हाट रिटेंशन प्लस इन्वर्जन, मतलब इसमें दोनों भी होता है, रिटेंशन कॉन्फ़िगरेशन एज वेल एज इन्वर्जन कॉन्फ़िगरेशन, 50% रिटेंशन 50% इन्वर्जन। सो देयर इज फॉर्मेशन ऑफ द टाइप्स ऑफ द रिएक्शन इज व्हाट, यहाँ पे देखना है कि इन्वर्जन कौन से रिएक्शन में होता है,
रिटेंशन और इन्वर्जन कौन से रिएक्शन में होता है, उस रिएक्शन को कौन सा रिएक्शन कहा जाता है, यहाँ पे ऐसा ये 50-50% क्यों मिला, यहाँ पे एक ही प्रोडक्ट क्यों मिला, नो डाउट यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन हुआ, लेकिन यहाँ पे दो मिले, यहाँ पे एक ही मिला, ये पॉसिबिलिटी क्यों है, यहाँ पे हम एक्सप्लेन करेंगे स्टेप बाय स्टेप। नो डाउट श्योर दिस प्राइमरी अल्किल ब्रोमाइड मेथिल ब्रोमाइड टू मिथेनॉल, टर्शियरी ब्यूटिल ब्रोमाइड टू टर्शियरी ब्यूटिल अल्कोहल, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन हुआ, लेकिन कौन सा सब्स्टिट्यूशन हुआ, कैसा हुआ, ये हम यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू टर्शियरी ब्यूटिल ब्रोमाइड। हमारे पास एक स्टार्टिंग रिएक्टर लेते हैं टर्शियरी ब्यूटिल ब्रोमाइड, उसके साथ रिएक्ट करेंगे हम एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। स्टार्टिंग रिएक्टेंट मॉलिक्यूल हम लेते हैं टर्शियरी ब्यूटिल ब्रोमाइड और उसके साथ लेना है एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। सपोज इफ वी आर हैविंग व्हाट टर्शियरी ब्यूटिल ब्रोमाइड, यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं रिएक्शन से। Starting reactant having the tertiary butyl bromide, it is reacted with the aqueous condition, aqueous potassium hydroxide। यहाँ पे aqueous potassium hydroxide हम लेते हैं वाटर और इथेनॉल के प्रेजेंस में, हमको ETOH एज ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लेना है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। So there is formation of such types of the product, 50% retention, 50% inversion. So this is for dextro, this is called as Leo. This is going to the formation of 50% dextro and 50% Leo. यहाँ पे रासायनिक मिक्सचर फॉर्मेशन होता है, रासायनिक मिक्सचर। इस रासायनिक मिक्सचर को मतलब ये 50% डेक्स्ट्रो एंड 50% लियो, इसको नॉन सुपर इम्पॉसिबल इनैंशियोमर फॉर्मेशन होता है। दिस इज कॉल्ड फॉर्मेशन ऑफ इनैंशियोमर। सो द इनैंशियोमर concept is arises from the stereochemistry, having the two types of the stereochemistry, isomerism is there, structural isomer and stereoisomer. The structural isomer again the classification chain isomer, position isomer, function isomer, metamerism, tautomerism. उसके बाद में स्टेरियो आइसोमर में दो क्लास आते हैं, दिस इज ज्योमेट्रिकल आइसोमर एंड ऑप्टिकल आइसोमर। ज्योमेट्रिकल आइसोमर में सिस ट्रांस और इजेड की हम बात करते हैं, और ऑप्टिकल आइसोमर में डेक्स्ट्रो रोटेटरी, लियो रोटेटरी, आर कन्फिगरेशन एंड एस कन्फिगरेशन। मतलब यहाँ पे एक मॉलिक्यूल आर कन्फिगरेशन बताता है, दूसरा एस बताएगा, तो इसका जो रिलेशन होता है, सो फर्स्ट आर टू एस और एस टू आर, ऐसा जो रिलेशन होता है आपस में, तो याद रखना है ये क्या होते हैं, नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज होते हैं, यानी कि वो दोनों का एक दूसरे का जो रिलेशन होता है, ये दो कंपाउंड का इनैंशियोमर होता है। क्या होता है, इनैंशियोमर होता है। सपोज दिस वन इज अ डेक्स्ट्रो रोटेटरी, लियो रोटेटरी, ये आर होता है और एस होता है, तो ये दोनों में रिलेशन इनैंशियोमर होता है, नॉन सुपर इम्पॉसिबल इनैंशियोमर कहा जाता है। और दूसरा कंसेप्ट आर टू एस और एस टू आर जो होता है इनैंशियोमर होता है। सेम टू सेम, मतलब आर का आर कन्फिगरेशन है, एस का एस कन्फिगरेशन होता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, डाया स्टीरियोमर कहते हैं। So this is the concept having what optical isomerism, optical activity. This is called as what absolute configuration. इसको RS configuration को absolute configuration कहा जाता है। So we are going toward the types of part of the reaction. One of the reactions of alkyl halide with what aqueous potassium hydroxide. Here the starting reactant molecule tertiary butyl bromide. It is what टर्शियरी ब्यूटिल ब्रोमाइड। यहाँ पे हम टर्शियरी ब्यूटिल ब्रोमाइड कभी लेते हैं और एक्वस कंडीशन में रिएक्शन करते हैं। ओके, सो हियर द सेकंड पॉइंट हम यहाँ पे बात करेंगे। सेकंड पॉइंट, इसका सेकंड पॉइंट, सपोज यू हैव टू रिटर्न हियर रेट। अब यहाँ पे हम इसके रेट के बारे में बात करेंगे, तो रेट किसके ऊपर डिपेंड होता है, द रेट इज डिपेंड ऑन टर्शियरी ब्यूटिल ब्रोमाइड। सो द रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ टर्शियरी ब्यूटिल ब्रोमाइड। इट मीन्स दैट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना है इसका, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इसका 1 है। याद रखना है कि रिएक्टेंट स्पेसीज, कितने रिएक्टेंट स्पेसीज के ऊपर रेट डिपेंड है,
तो उसका ऑर्डर उसी से कैलकुलेट किया जाता है। सो तो यहाँ पे रिएक्शन का रेट सिर्फ टर्शियरी ब्यूटिल ब्रोमाइड के ऊपर डिपेंड है, इसीलिए इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 है, याद रखना है। अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ जा रहे हैं हम, मैकेनिज्म। इस रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या है, मतलब स्टेप बाय स्टेप हमको इसको प्रूव करना है। सपोज पहला स्टेप है हमारे पास ये रिएक्टेंट है टर्शियरी ब्यूटिल ब्रोमाइड। सो व्हाट हैपन, फर्स्ट स्टेप इज ब्रेक बाय हेटेरोलिटिकली क्लीवेज, C and Br bond is break by heterolytically cleavage, that is what a slow step is takes place, and we know that the slow step is what a RDS, this is the rate determining step। पहला स्टेप जो होता है वो स्लो स्टेप जो होता है वो RDS होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। जैसे कि CBr बॉन्ड ब्रेक किया तो यहाँ पे इस कार्बन के पास पॉजिटिवली चार्ज आया, दिस इज कॉल्ड एज टर्शियरी कार्बोकटायन, दिस इज गोइंग टू द फॉर्मेशन ऑफ टर्शियरी कार्बोकटायन। तो यहाँ पे टर्शियरी कार्बोकटायन फॉर्मेशन होता है सिमेट्रिकल। कैसा है ये, सिमेट्रिकल कार्बोकटायन, हियर फॉर्मेशन ऑफ सिमेट्रिकल कार्बोकटायन। अब सेकंड स्टेप की हम बात करेंगे, वी आर हैविंग द टर्शियरी कार्बोकटायन इज हियर एंड दिस इज रिएक्टिव विथ व्हाट, एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड न्यूक्लियोफाइल। अब यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हमको करना है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। ये सिमेट्रिकल कार्बोकटायन हमने फर्स्ट स्टेप में प्रिपेअर किया। पहिल्या स्टेपमध्ये काय केलं, टर्शियरी कार्बोकटायन फॉर्मेशन झाला, तो कसा आहे, सिमेट्रिकल आहे। मग आता आपल्याकडे न्यूक्लियोफाइल आहेत, तर न्यूक्लियोफिलिकचे आपल्याला एडिशन करायचे आहेत। न्यूक्लियोफाइल इज रिएक्ट विद द टर्शियरी कार्बोकटायन, नो डाउट यहाँ पे फास्ट स्टेप होता है। कौन सा, फास्ट, बिकॉज ऑफ वेन एवर द पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज आर come close to each other, and then the reaction is suddenly takes place in recent times, very short times, in very short times the positive and negatively charged are come close to each other, means what, the formation of the reaction is what a very fast यहाँ पे जो स्टेप होती है वो फास्ट होती है। लेकिन न्यूक्लियोफाइल जो आने वाला है वो कैसे आएगा, न्यूक्लियोफाइल जो अटैक करने वाला है वो कैसे अटैक करेगा, कैसे मतलब सामने से आएगा या फ्रंट साइड से आएगा, बैक साइड से आएगा, सामने से आएगा या बैक साइड से आएगा, फ्रंट साइड से आएगा या बैक साइड से आएगा। जब फ्रंट साइड से आएगा तो क्या होगा, बैक साइड से आएगा तो क्या होगा, या सिर्फ फ्रंट से आएगा या सिर्फ बैक से आएगा, दोनों साइड से आएगा। क्यों, क्योंकि ये सिमेट्रिकल कार्बोकटायन है, यहाँ पे 50% बैक साइड अटैक होगा और 50% फ्रंट साइड अटैक होगा। तो यहाँ पे जब फ्रंट साइड से अटैक करेंगे तो ये मिलेगा, बैक साइड से अटैक करेंगे तो ये मिलेगा। सो दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, 50% यहाँ पे 50% ये मिला और 50% ये मिला। सो देर इज फॉर्मेशन ऑफ डेक्स्ट्रो रोटेटरी एंड हियर फॉर्मेशन ऑफ द लियो रोटेटरी। डेक्स्ट्रो से ये मिलेगा और लियो से ये मिलेगा, 50% डेक्स्ट्रो 50% लियो, देर इज फॉर्मेशन ऑफ ऑर्डर रासमाइजेशन एंड हियर रिटेंशन, हियर द वन ऑफ द प्रोडक्ट, हियर फॉर्मेशन ऑफ रिटेंशन कन्फिगरेशन एंड हियर इन्वर्जन कन्फिगरेशन। तो यहाँ पे सिमेट्रिकल कार्बोकटायन टर्शियरी कार्बोकटायन होने की वजह से वो क्या करेगा, 50% रिटेंशन प्रोडक्ट और 50% इन्वर्जन प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा। देयर इज फॉर्मेशन ऑफ ऑर्डर आर racemic mixture. So there is formation of order in enantiomer, racemization is takes place, means यहाँ पे हमने प्रूव किया स्टेप के मतलब मैकेनिज्म की वजह से स्टेप इसका कितना है, 2 है। So this is how we have been explained the part of this is the Yessian reaction, Yessian reaction, Yessian reaction. So which types of the Yessian, this is the Yessian 1 reaction. Why it is called as Yessian 1 reaction, रेट हम देखेंगे कि ऑर्डर, इस रिएक्शन का ऑर्डर 1 है क्योंकि इसका रेट सिर्फ रिएक्टेंट ओनली 1 रिएक्टेंट स्पीशीज के ऊपर डिपेंड है, इसीलिए इसका इस रिएक्शन का रेट 1 है। तो यहाँ पे इसमें हमने 1 लिखा। सो दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, यूनिमोलेक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जिसका रेट, जिसका ऑर्डर 1 होता है उसका स्टेप 2 होता है। मैकेनिज्म से हमने एक्सप्लेन किया कि इस रिएक्शन में मैकेनिज्म का स्टेप 2 है, इसीलिए इसका स्टेप कितना है, 2 आया। सो दिस इज व्हाट यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर 2 स्टेप, फर्स्ट ऑर्डर 2 स्टेप। अब यहाँ पे हमको देखना है कि इसका कार्बोकटायन ऑर्डर क्या रहता है, टर्शियरी, सेकेंडरी एंड प्राइमरी। सो दिस इज द कार्बोकटायन ऑर्डर और वी कैन से अल्किल हैलाइड ऑर्डर। इसका अल्किल हैलाइड मतलब प्राइमरी में ये रिएक्शन नहीं होता है, सेकेंडरी और टर्शियरी में होता है।
है, टर्शियरी में पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहती है, मेजॉरिटी टर्शियरी में है और माइनॉरिटी सेकेंडरी में है, प्राइमरी में ये रिएक्शन नहीं होता है। तो प्राइमरी में हम बात करेंगे तो प्राइमरी में यहाँ पे कंक्लूड होता है कि वो SN2 हो जाता है, SN1 नहीं होता है। SN2 प्राइमरी के लिए, SN1 टर्शियरी के लिए, दो कॉमन होता है दोनों के लिए, लेकिन यहाँ पे मेजॉरिटी होती है टर्शियरी में, सेकेंडरी में नहीं होती। तो यहाँ तक हमने देखा रिएक्शन रेट, मैकेनिज्म एंड उसका स्टेप। अब हम देखेंगे इस रिएक्शन का एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। So what is the energy profile diagram? As we know, this energy profile diagram means what? The graph is plotted. As you can say, the graph is plotted energy versus reaction progress. एनर्जी वर्सेस, यहाँ पे एनर्जी है और यहाँ पे रिएक्शन कोऑर्डिनेट है। दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? रिएक्शन कोऑर्डिनेट। दिस इज कॉल्ड एज रिएक्शन कोऑर्डिनेट और रिएक्शन प्रोग्रेस। अब रिएक्टेंट से हम स्टार्ट करते हैं, प्रोडक्ट तक जाते हैं। यहाँ पे हमारे पास रिएक्टेंट है और ऐसे गए फिर, सो वी आर having the reactant molecule here, so that is going to the formation of such types of the transition state. Why we have to go into the formation here? प्रोडक्ट, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट। रिएक्टेंट कौन है हमारा? टर्शियरी ब्यूटिल ब्रोमाइड यहाँ पे है। प्रोडक्ट कौन है? टर्शियरी ब्यूटिल अल्कोहल है। ट्रांजिशन स्टेट देखो, ये दो स्टेप है, रिएक्शन दो स्टेप है, तो यहाँ पे TS और यहाँ पे भी TS, TS1, TS2, TS1, TS2, दोन TS इथं जनरेशन झाल्या बघा। मेकॅनिझम वरून आपण प्रूव्ह केलंय की दोन स्टेपची मेकॅनिझम रिएक्शन आहे, मग इथं दोन ट्रान्झिशन स्टेट तयार झाल्या, TS1 आणि TS2। आता बघा इथं मला काय सांगायचं आहे, रिएक्टंट आणि प्रोडक्ट या दोन मधला जो डिफरन्स असतो याला डेल्टा एच असं म्हणतात। काय म्हणतात? चेंज इन एन्थाल्पी। आणि रिएक्टंट आणि ट्रान्झिशन स्टेट यामधला जो एनर्जी डिफरन्स आहे याला काय म्हणतात? चेंज इन एनर्जी। दिस इज ऑल राईट, चेंज इन एनर्जी, ॲक्टिवेशन एनर्जी। TS1 आणि TS2 इथं डेल्टा ई किती असणार मग? SN1 मध्ये डेल्टा E1 आणि डेल्टा E2। सो दिस इज कॉल्ड ॲज ॲक्टिवेशन चेंज इन एनर्जी। SN1 मध्ये दोन असतात कारण ट्रान्झिशन स्टेट तिथं दोन फॉर्म होतात। बघा नीट JEE कम्प्युटर एक्झाममध्ये या टाईपचं तुम्हाला क्वेश्चन विचारला जाऊ शकतो। ऑर्डर ऑफ कार्बोकटाइन, ऑर्डर ऑफ अल्किल हलाइड ऑफ SN1 रिएक्शन, सॉल्वेंट के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। स्टीरियोकेमिस्ट्री, रिटेंशन एज वेल एज इन्वर्जन दोनों भी होता है। इसके ऊपर कार्बोकटाइन कैसा फॉर्मेशन होता है, रिटेंशन होता है, इन्वर्जन होता है, इसके ऊपर क्वेश्चन। उसके बाद में एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। TS कितने TS फॉर्मेशन होते हैं, डेल्टा ई कितने रहते हैं, चेंज इन एंथैल्पी क्या होता है। सो हियर वी हैव इन द टोटली कंक्लूडेड द पार्ट ऑफ दिस वाट SN1 टाइप्स ऑफ द रिएक्शन। SN1 मध्ये आपण एक्सप्लेन केलंय। SN1 ही टर्शियरी, सेकंडरी, प्राइमरी, ऑर्डर ऑफ अल्किल हलाइड, टर्शियरी अल्किल हलाइड, रिएक्टिव्ह विथ ॲक्वस पोटॅशियम हायड्रॉक्साईड, पोलर सॉल्व्हेंट आपण तिथं यूज केला आहे। रिटेन्शन आणि इन्व्हर्जन कन्फिगरेशन झालं आहे। रेट जर सांगितली तर रेट हा टर्शियरी अल्किल हलाइड सोबत डिपेंड असतो, ओनली डिपेंड ऑन टर्शियरी अल्किल हलाइड। दिस इज व्हॉट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 1, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन त्याची 1 असते। मग आपण मेकॅनिझम बघितलं, मेकॅनिझममध्ये दोन स्टेप तयार केले। पहिला स्टेप काय झालं? स्लो स्टेप, RDS स्टेप, तिला रेट डिटरमाइनिंग स्टेप असं म्हणतात। दुसऱ्या स्टेपमध्ये आपण कार्बोकटाइन घेतला, त्याच्यावर रिटेन्शन आणि इन्व्हर्जन फॉर्मेशन केलं आहे, कारण हा सिमेट्रिकल कार्बोकटाइन आहे। येणारा न्यूक्लियोफाइल हा फ्रंटला पण येणार, बॅकला पण येणार। फ्रंटला अटॅक झाला त्याला रिटेन्शन कन्फिगरेशन म्हणलं, बॅकला अटॅक झाला त्याला इन्व्हर्जन कन्फिगरेशन म्हणलं। मग काय फॉर्मेशन झाला? 50% डेक्स्ट्रो, 50% लिओ, रासायनिक मिक्सचर त्याला आपण म्हटलंय। त्यानंतर त्याला नॉन सुपर इम्पॉसिबल इनॅन्शुबर असं म्हटलंय। अगेन एनर्जी प्रोफाइल स्टेप मध्ये गेलोय, स्टेप 2 आहेत ऑन द बेसिस ऑफ मेकॅनिझम। देन एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम मध्ये एनर्जी वर्सेस रिएक्शन कोऑर्डिनेट सांगितलं आहे। डेल्टा एच काय असतो? द एनर्जी डिफरन्स बिटवीन रिएक्टंट अँड प्रोडक्ट। डेल्टा ई काय असतो? एनर्जी डिफरन्स बिटवीन रिएक्टंट अँड ट्रान्झिशन स्टेट। सो हियर TS1 आणि TS2 दोनों स्टेट आपल्याला इथं भेटता है। दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? SN1 रिएक्शन। तो यहाँ पे हमने SN1 रिएक्शन सक्सेसफुली एक्सप्लेन किया। उसके बाद में कुछ इसके एग्जाम्पल लेते हैं जो कि खास करके आपके बोर्ड एग्जाम में और नीट JEE CET में पूछे जाते हैं। देखेंगे कैसे क्वेश्चन
कैसे एग्जाम्पल, कैसे रिएक्शन का मैकेनिज्म, कैसे उसका स्टीरियोकेमिस्ट्री मतलब पूछा जाता है. सपोज वी आर हैविंग द स्टार्टिंग रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, दैट इज व्हाट CH double bond CH, here the bromine atom. Again what we are having these types of the compound, this is called as what, this is known as benzyl bromide, benzyl chloride. So this way you want to have the reactant molecule is treated with what, aqueous potassium hydroxide. यहाँ पे हमको aqueous potassium hydroxide लेना है, aqueous potassium hydroxide घ्यायचं आहे. काय करायचं, सबस्टिट्यूशन रिएक्शन करायची आहे, ब्रोमीन काढायचं आहे. आता बघा आपण जर म्हटलं तर हा जाणार आणि हा पण जाणार, परंतु इथं सगळ्यात महत्त्वाची पॉईंट काय आहे की हा रेझोनन्स होतोय का, कार्बोकॅटायन कुठला तयार होतोय, इंटरमिडिएट जनरेशन होतोय का. यस, हाऊ द रिएक्शन इज टेक्स प्लेस. आता बघा आपल्याकडे हा अलील कुठला घेतला आपण, अलील ब्रोमाइड घेतला, हा बॉन्ड ब्रेक होणार, हेट्रोलिटिकली आपण बॉन्ड ब्रेक केलाय, व्हेरी गुड, असा कार्बोकॅटायन तयार झाला. परंतु हा प्रायमरी कार्बोकॅटायन हे आहेत, हा जास्त वेळ स्टेबल नाही राहत. मग इट वांट टू द स्टेबल, तो प्रयत्न करण स्वतःला सेकंडरी किंवा टर्शरी बनवण्याचा. मग सेकंडरी टर्शरी केव्हा बनन, जेव्हा कंपाऊंडमध्ये सेकंडरी कार्बन असेल तरच बनेल, जेव्हा कंपाऊंडमध्ये टर्शरी कार्बन असेल तरच बनेल. मग आता मला सांगा, इथं प्रायमरी कार्बन आहेत, आपण इथं CBr बॉन्ड ब्रेक केला, प्रायमरी कार्बोकॅटायन तयार झाला. मग आता अशा वेळेस काय करायचं बघा, हा जो प्रायमरी कार्बन आहे हा सेकंडरी किंवा टर्शरी बनण्याचा प्रयत्न करेल, परंतु इथं टर्शरी कार्बन आहे का, दिलेल्या कंपाऊंडमध्ये टर्शरी कार्बन ॲटम नाहीये. मग टर्शरी कार्बन ॲटम बनण्याचा प्रश्नच येत नाही. मग प्रश्न राहिला काय, सेकंडरी कार्बन ॲटम आहेत का, हो. मग आहे तर तो बनण्याचा प्रयत्न करत. सो दॅट इज गोइंग टू द फॉर्मेशन ऑफ सच टाइप्स ऑफ द स्पेसिस. हा इथं आला म्हणजे असा झाला, हा पुन्हा वापस जाणार. सो देर इज अ फॉर्मेशन ऑफ द टाइप्स ऑफ द स्पेसिस अँड वी आर हॅविंग दिस इज गोइंग टू द फॉर्मेशन ऑफ व्हाट, रेजोनेंस हाइब्रिड. देर इज फॉर्मेशन ऑफ द बॉन्ड इज लोकलाइज. अब देखो ये बॉन्ड जो बना ये बना सेकंडरी, हाँ तो ये सेकंडरी बनने की कोशिश करेगा. फिर यहाँ पे हम न्यूक्लियोफाइल का अटैक करेंगे. सो देर इज फॉर्मेशन ऑफ व्हाट, द न्यूक्लियोफिलिक अटैक टू द बैक साइड, रिटेंशन एंड इन्वर्जन. सो देर इज फॉर्मेशन ऑफ द फ्रंट साइड, बैक साइड. लेकिन यहाँ पे हम रिएक्शन की बात करते हैं, प्रोडक्ट की बात करेंगे तो हमारा प्रोडक्ट ये मिलेगा. इसका नाम होगा अलील 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 अल्कोहल. कौन मिलेगा, अलील अल्कोहल. अब ये जो रिएक्शन है SN1 का रिएक्शन है, याद रखना है, जैसे कि बेंजीलिक में भी वैसा होगा. सो देर इज फॉर्मेशन ऑफ दिस टाइप्स ऑफ द कार्बोकैटायन, बट दिस टाइप्स ऑफ द कार्बोकैटायन इज गोइंग टू द फॉर्मेशन ऑफ व्हाट, इट इज अगेन सेकेंडरी वन. दिस इज गोइंग टू द फॉर्मेशन ऑफ सच टाइप्स ऑफ द कार्बोकैटायन लाइक दिस. यहाँ पे सेकेंडरी कार्बोकैटायन बना, यहाँ पे सेकेंडरी बना, तो प्रोडक्ट जो फॉर्मेशन होगा, नो डाउट यहाँ पे प्रोडक्ट यही बनेगा जो कि पॉसिबिलिटी है. दिस इज गोइंग टू द फॉर्मेशन ऑफ बेंजील अल्कोहल. बेंजील ब्रोमाइड से फॉर्मेशन होता है बेंजील अल्कोहल. अलील ब्रोमाइड से फॉर्मेशन होता है अलील अल्कोहल. सो दिस इज वन ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ व्हाट, SN1 टाइप्स ऑफ द रिएक्शन. इसके पहले हमने जो देखा था दैट इज टर्शियरी अल्किल ब्रोमाइड्स. याद रखना है, अलील ब्रोमाइड एंड बेंजील bromide, it gives to the product via SN1 types of the reaction due to the formation of secondary carbon atom. Here goes to the secondary carbocations and formation of what, tertiary product is there. ऐसा लेते हम. Suppose if one of the reactant species is here, this is one of the reaction, bromine atom is here. First of all H plus a product, and second upon the OH nucleophile, B product in the presence of ETOH or we can say water molecule. ऐसा क्वेश्चन होगा, इसका आंसर आपको फाइंड आउट करना है. ऑप्शन नंबर बी आपको चूज करना है. ABCD में कौन सा है, 1 2 3 4 में कौन सा है एज अ पार्ट ऑफ नीट JEE. क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे सबसे पहला स्टेप हम क्या करेंगे, हीट है यहाँ पे, H प्लस है,
So there is a possibility to the formation of product H प्लस एसिड के प्रेजेंस में हमको रिएक्शन करना है। अब याद रखना है यहाँ पे भी प्रोटॉन है ना। H प्लस के प्रेजेंस में हम जब रिएक्शन करते हैं सो हियर गोइंग टू द फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिवली चार्ज, यहाँ पे Br निकल जाएगा माइनस HBr, इसके साथ माइनस HBr होगा, तो ये कार्बोकैटायन बनेगा सेकेंडरी। देखना है कि इट वांट टू द अगेन पॉसिबिलिटी टू द टर्शरी कार्बोकैटायन। यस, यहाँ पे पॉसिबिलिटी होगा टर्शरी कार्बोकैटायन बनने की। यस बना, ये बना टर्शरी कार्बोकैटायन। अब यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल लेना है, OH न्यूक्लियोफाइल। सो देर इज प्रोडक्ट पॉसिबिलिटी अगेन हियर, no we can say not possibility but 100% product is from this is OH. This is what there is formation of the tertiary alcohol. What is that? Tertiary alcohol. So like this the question is asked in your competitive exams. It may be cyclic reactant molecule as well as a cyclic reactant species. If you heard the given such types of the reactant is here, so what happen, we have to addition of this potassium hydroxide, aqueous condition is there. So what happen here, this OH coming from the aqueous condition, no doubt there is formation of this is nucleophilic substitution types of the reaction. Here OH is formed, so there is formation of the, it is secondary and this one is a secondary alkyl alcohol is there. So there is formation of secondary alkyl chloride to the secondary alcohol is there. So this is one of the part of the reactions, it is having the substitution types of the reaction. Then नेक्स्ट वन रिएक्शन की हम बात करेंगे यहाँ पे, वी आर हैविंग सच टाइप्स ऑफ द रिएक्टेंट स्पेसिस H. सो दिस इज कॉल्ड प्रायमरी अल्किल हलाइड. आता इथं घेतला आपण प्रायमरी अल्किल हलाइड, देस याचं नाव आहे मेथिल ब्रोमाइड. काय नाव आहे? मेथिल ब्रोमाइड. सो दिस मेथिल ब्रोमाइड इज ट्रीटेड विथ व्हाट? aqueous condition potassium hydroxide in presence of toluene as a non-polar solvent. टूलिन, यहाँ पे टूलिन ऐसा भी लिख के दिया जाएगा. सपोज एंड द टाइप्स ऑफ द प्रोडक्ट इज फॉर्म, दिस इज H1, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? मिथेनॉल. दिस इज नोन एज व्हाट? मेथिल अल्कोहल. दिस इज वन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल. दिस इज वन ऑफ द रिएक्शंस. व्हाट इज द रेट? सेकंड बात करेंगे हम रेट. रेट इज डिपेंड अपॉन व्हाट? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्राइमरी अल्किल ब्रोमाइड एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड. यहाँ पे देखना है कि दोनों के ऊपर रेट डिपेंड होता है. सो दैट इज वी कैन राइट द रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द व्हाट? मेथिल ब्रोमाइड एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड. दोनों के ऊपर रेट डिपेंड होगा. सो दैट्स व्हाई वी कैन से दिस ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 2. इस रिएक्शन का ऑर्डर होगा 2. सपोज दिस इज द रिएक्शंस एंड दिस वन इज अ रेट. देन वी आर गोइंग टू द पार्ट ऑफ मैकेनिज्म. याद रखना यहाँ पे ऑर्डर जो होता है अल्किल हलाइड का. सो द नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट? अल्किल हलाइड ऑर्डर एज अ स्टार्टिंग रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी. मतलब टर्शरी में नहीं होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी में होता है. प्राइमरी इट इज अ मेजॉरिटी ऑफ सच टाइप्स ऑफ द रिएक्शंस. यहाँ पे हमने रिएक्शन लिखा, उसका रेट लिखा. रेट से हमको ये पता चला कि रिएक्शन का ऑर्डर 2 है. तो रिएक्शन का ऑर्डर 2 है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि SCN न्यूक्लियोफिलिक टाइप्स ऑफ द सब्स्टिट्यूशन SN2 होता है, ऑर्डर 2. यहाँ पे हम लिखते हैं बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम इसको कहेंगे. अब यहाँ पे हमको इस रिएक्शन का लिखना है मैकेनिज्म. सबसे इंपॉर्टेंट बात है अब यहाँ पे मैकेनिज्म. इस रिएक्शन का मैकेनिज्म कैसा होगा? देखो हमारे पास स्टार्टिंग रिएक्टर मॉलिक्यूल है ये वाला मेथिल ब्रोमाइड प्राइमरी. द फर्स्ट स्टेप इज दैट. So this is how the bond is break by heterolytically cleavage HET. So the bond is break by heterolytically cleavage and there is formation of what? These types of the species primary carbocation. देखना है कि ये जो रिएक्शन इतना फास्ट नहीं जाता है जितना फास्ट रिवर्स मतलब बैकवर्ड आता है. फॉरवर्ड जाने की इसकी 0.01 स्पीड होगी और बैकवर्ड आने की इसकी 99.9 स्पीड होगी. अब ऐसा क्यों? Why this reaction is takes place like this? And we know that the generally stability of carbocation क्या होता है? ये होता है ना. हाँ ऐसा तो होता है, ये होता है.
सबसे अनस्टेबल, स्टेबल, अनस्टेबल, लेस स्टेबल कार्बोकैटायन कौन होता है? प्राइमरी होता है। तो जहां पे हम प्राइमरी कार्बोकैटायन जनरेट कर रहे, तो ऑफ कोर्स उसके साथ जो न्यूक्लियोफाइल है ये Br निगेटिवली चार्ज, तो ये इतना फास्ट रिएक्ट होगा और ये प्रोडक्ट फॉर्म होगा वापस। सो दिस टाइप्स ऑफ द रिएक्शन इट इज कॉल्ड एज व्हाट? ड्यू टू द अनस्टेबिलिटी, तो यहां पे ये जनरेट नहीं होता है, ड्यू टू अनस्टेबिलिटी यहाँ पे ये जनरेट नहीं होता है। तो जनरेट नहीं होता है तो रिएक्शन में मैकेनिज्म में क्या होगा, है ना, ये जनरेट नहीं होगा तो रिएक्शन के मैकेनिज्म में क्या होगा? So this is the possibility, there is no formation of such types of the primary carbocation due to the less stable, unstable। तो यहाँ पे हमारे पास जो न्यूक्लियोफाइल है कौन? OH न्यूक्लियोफाइल। यहाँ पे हम जो रिएक्शन कर रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का, तो ये न्यूक्लियोफाइल जैसे ये Br आएगा वैसे ये बैक से अटैक करेगा, फ्रंट से नहीं करेगा। क्यों? फ्रंट से इसलिए नहीं करेगा क्योंकि Br की साइज बहुत बड़ी है, Br एटम की साइज बड़ी है, तो यह है सामने से अटैक नहीं करेगा, जो कि हाइड्रोजन की साइज बहुत स्मॉलर है। लेस क्राउडेड साइड से न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और जैसे अटैक करेगा वैसे Br लॉस हो जाएगा, जैसे Br लॉस होगा वैसे OH न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। देखो ये जो प्रोसेस है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूक्लियोफाइल बैक से अटैक करेगा, Br सामने से निकल जाएगा, Br सामने से निकल जाएगा, न्यूक्लियोफाइल बैक से अटैक करेगा। ये जो प्रोसेस है ये साइमल्टेनियस होती है, इसको कंसर्टेड रिएक्शन मैकेनिज्म कहा जाता है। कंसर्टेड, व्हाट आई कैन से, कंसर्टेड रिएक्शन, एक आ रहा है दूसरा जा रहा है, आने वाला आ रहा है, जाने वाला जा रहा है। आने वाला कौन? OH न्यूक्लियोफाइल। जाने वाला कौन? Br नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज। रहने वाले वही के वही रह रहे, मतलब 2-3 हाइड्रोजन, देखो ये 3 हाइड्रोजन ऐसे है, OH न्यूक्लियोफाइल, ये बॉन्ड ब्रेकिंग और मेकिंग, पार्शियली बॉन्ड यहाँ पे हमने लिखा। सो दिस इज कॉल्ड फॉर्मेशन ऑफ ट्रांजिशन स्टेट। यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट हमने जनरेट किया, दिस इज ट्रांजिशन स्टेट हियर, this types of the transition state is takes place. So what happened here? This is a completely inversion. इथं बघा completely inversion configuration झालाय, Br निघून गेलाय, OH न्यूक्लियोफाइल अटॅक झालाय, completely inversion याला म्हणायचं, बॅक साइडला अटॅक झालाय का? ब्रोमीनची साईज मोठी आहे, हायड्रोजनची साईज स्मॉल आहे, मग हायड्रोजनची साईज स्मॉल आहे, हा बॅक साइडला अटॅक झाला, Br निघून गेला फ्रंट साइडना, कसं झालं? एकाच वेळेस हे झालं, सायमल्टेनियस म्हणतात त्याला, कंसर्टेड रिएक्शन असं म्हणतात. सो देर इज फॉर्मेशन ऑफ द ट्रान्झिशन स्टेट. How we are having the types of the product is formed, this is the transition state is generated, and we call these types of the product is obtained a completely inversion configuration. Completely inversion configuration इथं झालाय. So this is 100% product is obtained by the inversion configuration, as we consider this one of the umbrella. यहाँ पे हम अम्ब्रेला का एग्जाम्पल बता सकते हैं. ये जो अम्ब्रेला है ये कौन है? अम्ब्रेला है. यहाँ पे हम ये कंसिडर करते हैं कि हवा यहाँ से आ रही है. कहाँ से? यहाँ से हवा आई. हवा को हम बोलेंगे न्यूक्लियोफाइल. ये न्यूक्लियोफाइल हम यहाँ से अटैक करेंगे तो इसका ये जो ज्योमेट्री है ऑफ कोर्स ऐसा बनेगा, है ना, उल्टा ऐसा बना. मतलब इसको कहा गया है ये WALDN. सो दिस इज कॉल्ड एज वाल्डन इन्व्हर्जन कन्फिगरेशन. याला काय म्हणतात? वाल्डन इन्व्हर्जन कन्फिगरेशन असं म्हणतात, जे की SN2 मध्ये होतंय. The Walden inversion configuration takes place in the SN2 types of the reaction due to what? Primary alkyl halide. Nucleophilic attack on the back side. The Br is lost with front side. Concerted reaction. Inversion configuration. Walden inversion configuration. And then formation of the this is the primary alkyl halide. Primary alcohol. 100% inversion configuration takes place. This is one how the step of the reaction is what? 1.
इसका स्टेप कितना है 1 है। बायमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ऑर्डर 2 स्टेप 1, ऑर्डर 2 स्टेप 1, ऑर्डर देना है स्टेप लेना है, ऑर्डर 2 स्टेप 1, ऑर्डर 2 स्टेप 1। सो दिस इज कॉल्ड एज व्हाट SN2 टाइप्स ऑफ रिएक्शन। अब यहाँ पे लास्ट पॉइंट हम मेंशन करते हैं एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। इसका एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम क्या है यहाँ पे बताते हैं। ओके, EPD हम इसको कहेंगे, EPD। आता बघा एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम सांगायचं झाल्यास आपल्याला एनर्जी वर्सेस रिएक्शन कोऑर्डिनेट इथं दाखवता आला पाहिजे। एनर्जी वर्सेस रिएक्शन कोऑर्डिनेट, एनर्जी वर्सेस रिएक्शन कोऑर्डिनेट रिएक्टंट पासून सुरू झाला आणि इथं आपल्याला प्रोडक्ट फॉर्मेशन झाला आहे। आपण इथं ट्रान्झिशन स्टेट एकच जनरेट केली, इथं आहे प्रोडक्ट आणि इथं आहे आपला रिएक्टंट। बघा रिएक्टंट आणि प्रोडक्ट याच्यामध्ये मला हे सांगायचं आहे, रिएक्टंट आहेत आणि इथं प्रोडक्ट आहे। रिएक्टंट आणि प्रोडक्ट मधलं जे एनर्जी डिफरन्स असतं त्याला काय म्हणतात, डेल्टा एच असं म्हणतात, चेंज इन एन्थाल्पी। The energy difference between reactant and product, it is called as change in enthalpy. As we can say delta H is equal to what, R minus P। आणि इथं डेल्टा एच आपण इथं लिहिला आणि डेल्टा ई लिहायचं आपल्याला, डेल्टा ई काय लिहावं लागेल, R minus TS ट्रान्झिशन स्टेट। सो दिस इज हाऊ वी हॅव बीन एक्सप्लेन द पार्ट ऑफ दिस इज द डेल्टा एच अँड डेल्टा ए ट्रान्झिशन स्टेट। याच्यामध्ये एकच तयार होते स्टुडंट स्टुडंट स्टुडंट, लक्षात ठेवायचं आहे। SN2 मध्ये ट्रान्झिशन स्टेट, SN1 मध्ये ट्रान्झिशन स्टेट 2 तयार होतात, SN2 मध्ये ट्रान्झिशन स्टेट ही 1 तयार होते, कारण मेकॅनिझम मध्ये फक्त एक आणि एकच ट्रान्झिशन स्टेट तयार होते, जी की SN1 मध्ये 2 होतात। SN2 मध्ये ट्रान्झिशन स्टेट एकच तयार केली, एकच स्टेप रिएक्शन झाली मेकॅनिझम, म्हणून ट्रान्झिशन स्टेट एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम मध्ये ही आपण ट्रान्झिशन स्टेट फक्त एकच दाखवली। सो दिस इज हाऊ वी हॅव द एक्सप्लेन द पार्ट ऑफ डेल्टा एच डेल्टा ए इन एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। रिएक्शन द एनर्जी डिफरन्स बिटवीन रिएक्टंट अँड ट्रान्झिशन स्टेट, इट इज कॉल्ड एज व्हाट, चेंज इन एनर्जी। द एनर्जी डिफरन्स बिटवीन रिएक्टंट अँड प्रोडक्ट, इट इज कॉल्ड एज चेंज इन एन्थाल्पी। इथं हे 2 पॉइंट लक्षात ठेवायचे आहे। सो दिस इज वी हॅव बीन एक्सप्लेन द पार्ट ऑफ व्हाट SN2 types of the reaction. Once we have been explained the part of the SN2 types of the reaction, here what happens in the SN2 types of the reaction, this is the primary alkyl halide is major than secondary and tertiary, means the tertiary alkyl halide do not give the SN2 types of the reaction. Primary alkyl halide is reactive with the potassium hydroxide in presence of non-polar solvent like toluene, xylene, this is the benzene molecule also, so DMSO like this. So non-polar solvent is used. Again the part of the rate is depend upon the reactant species as well as potassium, aqueous potassium hydroxide. That's why the order of the reaction is a 2. Order of the reaction is what, a 2. And we are going for the next part. We are having the explain, this is the part of the mechanism. There is a concerted reaction is takes place, means what, the nucleophile is attacked on the back side and this one of the Br is lost and Cl is lost on the one side. So this is what, this one simultaneously nucleophile attack and Br is lost, nucleophile attack and again nucleophile lost. This simultaneous process is takes place, this is called as concerted reaction mechanism। तो यहाँ पे कंसर्टेड रिएक्शन मैकेनिज्म होता है। सो देयर इज फॉर्मेशन ऑफ कंसर्टेड मैकेनिज्म स्टेप एंड जनरेशन ऑफ ओनली 1 ट्रांजिशन स्टेट। वहाँ पे एक ही ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म होती है, एक ही ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म होती है, जो कि हमने एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम में बताया। सो ऑन द बेसिस ऑफ द मैकेनिज्म पाथ ऑफ रिएक्शन देयर इज ओनली 1 स्टेप इज फॉर्म, दैट्स व्हाई वी कॉल 1 स्टेप 2 ऑर्डर 1 स्टेप रिएक्शन, दिस इज कॉल्ड एज SN2 टाइप्स ऑफ द रिएक्शन। तो यहाँ पे हमने एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम में बताया कि ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म होती है एक, एनर्जी डिफरेंस बिटवीन रिएक्टेंट एंड ट्रांजिशन स्टेट इज अ चेंज इन एनर्जी एंड रिएक्शन, द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, इट इज कॉल्ड एज चेंज इन एंथैल्पी। तो यहाँ पे हमने SN2 टाइप्स रिएक्शन एक्सप्लेन किया, जो कि इसके पहले SN1 किया। हियर वी हैव बीन द कंप्लीटेड द पार्ट ऑफ द रिएक्शंस ऑफ अल्किल हैलाइड। उसके बाद में हम रिएक्शन देखने वाले हैं, रिएक्शंस ऑफ, इसमें 2 रिएक्शन की बात की जाती है, जो कि हमारे लेफ्ट है, जो कि प्रिपरेशन में हमने ऑलरेडी देखा है, कौन सा, फिंकेलस्टीन रिएक्शन एंड स्वर्स रिएक्शन। तो ये एज अ रिएक्शन बोल के भी काम करेगा, क्योंकि स्टार्टिंग रिएक्टेंट अल्किल हैलाइड है और उसके साथ हम सोडियम आयोडाइड यूज करेंगे। अल्किल हैलाइड इज रिएक्टिव विद सोडियम आयोडाइन, फॉर्मेशन ऑफ द अल्किल आयोडाइड।
दिस इज कॉल्ड एज व्हाट फिंकरस्टीन रिएक्शन। एंड स्वर्स रिएक्शन की हम बात करते हैं तो स्वर्स रिएक्शन में क्या होता है, दिस इज व्हाट अल्किल हैलाइड इज ट्रीटेड विद अल्किल हैलाइड इज ट्रीटेड विद द मेटल हैलाइड, सो दैट इज पर्टिकुलरली मेटल फ्लोराइड, सिल्वर फ्लोराइड, कोबाल्ट फ्लोराइड, antimony fluoride, mercury fluoride. Such types of the metal fluoride is treated with the alkyl halide and formation of the alkyl fluoride, and this types of the reaction is called as a Schwarz reaction. तो ये दो रिएक्शन भी हम यहाँ पे इंक्लूड करेंगे जो कि एज अ पार्ट ऑफ द रिएक्शन ऑफ अल्किल हैलाइड है। देन वी आर गोइंग टू द पार्ट ऑफ द रिएक्शंस ऑफ अरिल हैलाइड। इसमें रिएक्शंस ऑफ अरिल हैलाइड कौन से है, फिटिक रिएक्शन क्या होता है, वुड्स फिटिक रिएक्शन क्या होता है, उलमन रिएक्शन क्या होता है, उसके बाद में सब्स्टिट्यूशन टाइप में कौन से रिएक्शन पार्टिसिपेट करते हैं, वहाँ पे रेट डिटरमाइनिंग सब्स्टिट्यूशन रेट होते हैं, जैसे कि पिक्रिक एसिड फॉर्मेशन करना फ्रॉम द पिक्रिल फ्रॉम द वन ऑफ द क्लोरीन एटम सब्स्टिट्यूटेड। दिस टाइप्स ऑफ द रिएक्शन इज गोइज टू द फॉर्मेशन ऑफ द इप्सो सब्स्टिट्यूशन टाइप्स ऑफ द रिएक्शन। तो वहाँ पे देखना है कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बढ़ेंगे वैसे वैसे रेट के ऊपर क्या फर्क पड़ता है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बढ़ेंगे तो रेट उसका क्या होता है, कम होता है, मतलब फास्ट रिएक्शन होती है। वहाँ पे हम एक्सप्लेन करेंगे कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो सब्स्टिट्यूशन करना है तो रेट पे क्या फर्क पड़ता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो सब्स्टिट्यूशन करना है, क्लोरीन से क्लोरीन को सब्स्टिट्यूट करना है OH से, तो रेट पे क्या फर्क पड़ता है वो हम वहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। सो हियर द वन ऑफ द रिमेनिंग पार्ट रिएक्शंस ऑफ अरिल हैलाइड।